Good morning, everyone. Am I audible? Hello. Hello. I can't hear you. I'm not able to confirm whether my mic is working or not. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Mic is working. Okay. Thank you. So let's start with the today's lecture. Today we are going to see regarding the financial statement, how to read the financial statement of the annual report of the company. But before that, we must know what is there in the financial statement. Okay, so we will clear some fundas related to the financial statement, and then we will, if time permits, or tomorrow we will see the financial statement of any company. Okay, so let's everyone just pay attention properly. This is once again one of the important part of fundamental analysis. So let me just start. Is my screen visible? Yes, sir, it's visible. Okay. Yeah. Okay. So whenever I say the financial statement of any company, and that is a mandatory disclosure for any company, means at the end of the year, financial year, they have to just disclose this. Okay. So whenever I say the financial statement for any company, so what are the mandatory things to be there in the statements are, first one is that there should be the balance sheet. Try to understand what is there in a financial statement. If I'm talking regarding the financial statement of any company, these are the things which must be there. उसके बाद जो ऐड करना है करो, but ये तो चाहिए ही चाहिए. Getting it? These are the mandatory things. Okay, so balance sheet will be there. We will just see the meaning of each and everything. Don't worry, balance sheet मतलब क्या होता है ना. Okay. Second, they need to give that profit and loss statement. Fine. Third one. Now these two are very important. These two we will be talking about. Okay. Now 3, 4, 5. There are actually 5 things which need to be included, and they are like cash flow. Cash flow statement. Then notes of account, and the last one, that is a statement of change in equity if applicable. Statement of change in equity if applicable. Okay, so whenever I say the financial statement of any company, so there will be the 5 things, minimum these 5 things will be there: balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, notes of account, and statement of change in equity. Getting it? Okay, so now before starting with this one, as I told, out of these 5 we'll be discussing these two, because these two are important for me for doing that fundamental analysis to know whether the share that particular company is good or not. Okay, so before starting with this one, first of all, let me know what do you understand from this balance sheet. Whenever I say the balance sheet means what this will include. What do you think? Sir, assets and liabilities, company's name. Very good. Balance sheet. Okay. So someone said correctly that a balance sheet means what? It actually consists of asset and liabilities. Now, first of all, tell me what do you understand from that asset and liabilities? Whenever I say asset means what? Sir, asset means something which increases in value over time, and liability is something which decreases its value over Perfect, time. perfect, perfect. Okay, so we are seeing the financial statement. Everyone just pay attention properly. Okay, so in that, these are the things which are there, which will be there in that financial statement, and we'll be seeing this too. Okay, so first we are seeing a balance sheet. Now, whenever I say the balance sheet means what? It consists of asset and liabilities. Asset and liabilities. Now, whenever I say the asset means what? Yes, someone said said that answer properly. That is, asset means what? Its value is going to increase.
over the period, over the time, that value of that particular thing is going to increase, and whenever the liability means what, uska value decrease hoga. Getting it? If I just give you the example, it's just like, let's suppose if I consider myself, okay, and if I just purchase something, let's suppose as on this 20th September मैंने कुछ तो खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, let's suppose I have just purchased some land, मैंने कुछ तो मुंबई में लैंड खरीदा, ठीक है, and at the same time I have just purchased let's suppose एक कुछ तो कार खरीदी मेरे लिए, getting it, ठीक है, so I have just purchased two things, एक लैंड खरीदा मेरे लिए and एक कार खरीदा, ठीक है, so these are the two things which I have purchased, but I know that over the time, let's suppose after the 10 years, if I just going to sell them, ठीक है, let's suppose मैंने कुछ तो लैंड खरीदा 1 CR में, समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड कुछ तो कार खरीदी let's suppose 50 लाख में, ठीक है, so these are the two investment which I have done for me, for my company, whatever it is, ठीक है, so now एक लैंड खरीदी 1 CR की, एंड let's suppose एक कार खरीदी let's suppose 50 लाख की, ठीक है, now just if I just go to sell it after 10 years, what will be the price of land? Will it be 1 CR or more or less? सर ज़्यादा हो जाएगा. Yes, obviously it's going to be more, ठीक है, and if I going to sell my car, उसका प्राइस ज्यादा होगा 10 साल के बाद? नहीं सर, कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. Are you getting? So this is what is asset and liability side to understand, ठीक है, मैं जिधर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट अगर फ्यूचर में उसका ग्रो होने वाला है, उसका पैसा अगर बढ़ने वाला है, so that is called as asset. It may be anything, it may be land, it may be any construction, it may be your machinery, whatever you can just think of, मतलब जिधर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, so if its price going to increase, then उसको बोलते हैं asset, and अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं liabilities. Getting it? ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, if I just invest in a land तो asset हो गया, if I just invest in a car and something like that, वो liabilities हो गया, ठीक है, so बैलेंस शीट में कंपनी का asset and liabilities रहेगा, ठीक है, एंड बैलेंस शीट कभी भी as on date रहता है, as on date, this is called as as on date, ठीक है. now what do you understand from this as on date? बैलेंस शीट कभी भी as on date रहता है. as on date का मतलब क्या होता है? मतलब उस दिन तक सर. या ठीक है, तो एसेट मतलब कैसे होता है, जब से मैंने कंपनी स्टार्ट की तब से जो मैंने खरीदा है, जो मैंने लायबिलिटीज एंड एसेट में जो भी खरीदा है, ठीक है, दैट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, ठीक है. लेट्स सपोज इफ आई जस्ट स्टार्टेड कंपनी फ्रॉम 2000 और 2010, सो 2010 से लेकर 2020 तक जितना भी मैंने खरीदा और जितना भी मैंने एसेट एंड लायबिलिटीज पे और खर्चा किया, वो सब यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एसेट ऑन में, ठीक है. सो वंस अगेन व्हेनेवर द बैलेंस शीट, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज. एसेट मतलब जो चीज जिसका प्राइस बढ़ने वाला है, लायबिलिटी मतलब जिसका प्राइस कम होने वाला है, नहीं तो इज लाइक is going to depreciate in a price, ठीक है, एंड बैलेंस शीट कभी भी एज ऑन डेट रहती है. व्हेनेवर से एज ऑन डेट मींस व्हाट, अभी तक जितना भी खरीदा रहेगा, मतलब जिससे कंपनी स्टार्ट किया, सब इसमें ऐड हो जाएगा. गेटिंग इट? सो दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंस शीट. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, द फर्स्ट थिंग, द सेकंड इज अ प्रॉफिट एंड लॉस. अब ये क्या रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? व्हाट दिस विल बी, एनीवन? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये क्या रहता है, इसमें क्या रहेगा? एज वी हैव सीन इन बैलेंस शीट, इसमें एसेट एंड लायबिलिटीज रहते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सर वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. या वेरी गुड, ठीक है. सो इट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता क्या, मेनली इट इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड इनटू टू. या उसमें सब रहेगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह वो सब रहेगा, बट मेनली दे आर जस्ट क्लासिफाइड लाइक इनकम एंड एक्सपेंसेस. Getting it? ठीक है. If I talk regarding this profit and loss statement, it will consist of income and expenses. ठीक है. And ये जो profit and loss statement रहता है, this is for the financial year. This is for the financial year. It is not as on date. समझो दोनों में फर्क है. ठीक है. It's just like try to understand कि let's suppose अगर कुछ कंपनी है, let's suppose if I take Infosys, ठीक है, 2010 में अगर उन्होंने किधर तो लैंड लिया है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कुछ ऑफिस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, दे हैव टेकन लैंड, ठीक है, एंड 2010 में उनका कुछ तो लेट्स सपोज कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ तो था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी था, मतलब लैंड वगैरह खरीदा उसके लिए. फाइन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू टेल मी, नाउ वी आर इन 2021, वी आर इन 2021. वंस अगेन 2010 में इन्फोसिस ने क्या क्या कुछ लैंड वगैरह खरीदा था, ठीक है, एंड उस टाइम का भी उनका कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, दैट इज फॉर श्योर, इट्स गोइंग टू बी देयर, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर का रहेगा. गेट इट? ठीक है. नाउ लेट्स सपोज वी आर इन 2020, ठीक है. नाउ इफ आई एम जस्ट मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसमें दो है, बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है. नाउ जो भी लैंड खरीदा, जो भी लेट्स सपोज ऑफिस उसने बिल्ड किया था, विल इट कम इन 2021 का बैलेंस शीट? विल इट बी इंक्लूडेड इन 2021 का बैलेंस शीट? व्हाट डू यू थिंक?
वो जो ऑफिस वगैरह जो उन्होंने आएगा सर। या आएगा, ठीक है। एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था 2010 में, विल इट कम अंडर दिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 2021? नहीं आएगा। नहीं आएगा, समझो, ठीक है। अभी बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट जो भी मतलब तू खरीदेगा सब आ जाएगा इधर, एसेट एंड लायबिलिटीज। बट इफ आई टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दैट विल बी फॉर द फाइनेंशियल। अगर वो जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहेगा, दैट विल बी इन 2010 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। बट इफ आई टॉक रिगार्डिंग दिस 2021, तो इसमें सिर्फ 2021 का रहेगा, मतलब 2021 मतलब जस्ट लाइक 21 टू 2022, मतलब मार्च 20 सॉरी अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक, ठीक है। सो दैट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी देयर इन this profit and loss statement. Are you getting it? Okay, so we are seeing financial statement. Getting? So in that, these are the two very important things: balance sheet and profit and loss. बाकी सब तो ठीक है, कैश फ्लो वगैरह मतलब कितना कैश आ रहा है, कितना फ्लो जा रहा है वगैरह, वो सब टाइम पास मतलब ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। आई विल नॉट से कि नॉट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, मतलब दिस टू मैटर्स अ लॉट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. Fine. So balance sheet once again, asset and liabilities, and profit and loss statement that consists of this income and expenses. Fine. After that, now there are two kind of statements. Financial statement में भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। ये तो इंक्लूड करना पड़ता है, ये तो इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। Now there are two more types of financial statement. Let's see. Let me insert a page. Yeah. This was the first. Now let's go to the second page. Fine. Now in a financial statement, there are two types. If you check for financial statement of any company ना ऐसा रहेगा, ठीक है। Normally it is like standalone and consolidated. ठीक है। So in a financial statement there are two types. There is a standalone financial statement and consolidated financial statement. Now anyone knows the meaning of this one? Is standalone क्या होता है, consolidated क्या होता है? What is a standalone? What is a consolidated? Yes, come on. Anyone having idea? Standalone financial statement क्या चीज है, consolidated क्या होता है? Any just guess? Any guesses? What this will be? Guess more. Because in a financial statement you will see this one, standalone and consolidated. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? Anyone from the class? What is the difference in these two financial statement? No one? At least try standalone and consolidated क्या रहेगा? Am I audible, guys? You're not responding दिखा रहे. Hello? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. Now let me just tell you, try to understand standalone and consolidated क्या होता है. Try to understand this concept. ठीक है. Let's suppose I will just talk regarding चलो Infosys नहीं, Infosys कौन सा लेते हैं? ठीक है, चल. I will talk regarding DMart. I will talk regarding DMart company. समझो standalone and consolidated financial statement क्या है? Once again, so this is what the financial statement. उसमें दो टाइप देख रहे हैं, standalone and consolidated. Now let's see what do you mean by these two. ठीक है. Now let's suppose if I just talk regarding the DMart. ठीक है, एक कंपनी है. फाइन. अभी एक कंपनी मतलब ये अच्छी खासी है, बड़ी कंपनी. लेट्स सपोज एमएनसी, फिलहाल तो एमएनसी समझो डीमार्ट एमएनसी है, नहीं है तो भी समझो कि अभी एमएनसी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल. फाइन. नाउ लेट्स सपोज डीमार्ट, नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी विल हैव सम हेड ऑफिस. आर यू गेटिंग इट? दे विल हैव अ हेड ऑफिस व्हिच इज सिचुएटेड इन पवई हीरानंदानी में, ठीक है. नाउ दे विल हैव देयर ब्रांचेस, ठीक है, इन इंडिया और ऑन पैन लेवल, ऑन पैन इंडिया लेवल, ठीक है. एंड लेट्स सपोज इफ इट्स एमएनसी, दे आर हैविंग द ब्रांचेस इन इन द ग्लोब, ठीक है, इन वर्ल्ड में भी किधर किधर उनका ब्रांचेस है, समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है. नाउ एक कंपनी है डीमार्ट, उसका दे आर हैविंग एचओ, दैट इज हेड ऑफिस, मोस्टली एक ही रहेगा, ठीक है, हेड ऑफिस और हेडक्वार्टर जो भी बोलते हो, ठीक है, दैट इज इन पवई. दे आर हैविंग ब्रांचेस, यू नो ना, द ब्रांचेस तो मतलब पूरा मुंबई में उनका ब्रांचेस, मुंबई के एज महाराष्ट्र एज वेल एज दे आर इन सम अदर स्टेट्स एज वेल ऑफ इंडिया,
Getting it? So they're having a branches over there, and let's suppose if it is MNC, so they will be having a branches in different countries as well. Getting it? Now try to understand. Okay, now what will happen is that now what do you think? Each and every branch will make its own profit and loss statement. Is financial statement or profit and loss statement? Is it mandatory for each and every branch to have that profit and loss statement? What do you think? हाँ सर, जरूरी है Yes, क्यों नहीं तो because each and पूरा every साथ में branch का कैसे रहेगा समझे. ही रहेगा. Yes, it is going to be there. ठीक है. Let's suppose मुंबई में आप ये किधर किधर डीमार्ट है यार. Let's suppose घाटकोपर में, let's suppose कांजूर मार्ग में, ठीक है. Let's suppose मुलुंड में, ठीक है. And ग्लोब में भी somewhere मतलब there are branches. ठीक है. So now that each and every branch, yes, they are also going to have their profit and loss statement. Let's suppose अभी इनका इंडिया में ही branches, let's suppose 100 है. So हर एक branch का they will be having the profit and loss statement. Try to understand. ठीक है. Now the branches which are there in different countries, they will also have their own profit and loss statement. Try to understand. ठीक है. And HO के पास भी रहेगा. HO का भी अगर कुछ हेड ऑफिस में भी कुछ एक्सपेंसेस वगैरह चालू रहेगा तो उनका भी कुछ तो स्टेटमेंट रहेगा. Are you getting it? ठीक है. So now this will be the statements. These are going to be the statements for each and every branch. Yes, it is going to be. अच्छा, why do we need to have that each and every branch का profit and loss statement? जरूरी है. अच्छा, is it necessary to me as an investor? हर एक ब्रांच का मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए. Is it necessary for me? सर इन्वेस्टर को तो सिर्फ एक ही पूरी कंपनी का चाहिए रहेगा. Yeah, very good. Try to understand. ठीक है. अभी होता कैसे? It's just like कि now for me actually I'm not interested in each and every. हाँ, घाटकोपर ब्रांच ने कितना कमाया, मुलुंड ब्रांच ने कितना कमाया, कांजूरमार्ग ने कितना, वो मुझे नहीं चाहिए. उनका कितना प्रॉफिट होगा वो मुझे एक्चुअली मैटर नहीं करता. ठीक है. हाँ, but it matters to the company or it matters to the management. Because if they want to say they want to analyze whether we want to expand the branches over here or we want to shut down, and also that will be decided by using that branch का profit and loss statement. But वो मेरे से कुछ लेना देना नहीं. As an investor मुझे वो हर एक branch का देखना नहीं है. Try to understand. ठीक है. Now let's suppose now it is mandatory for each and every company to just disclose that particular financial statement to shareholders. Because if you are a shareholder ना actually तो company का मालिक बनता है in some percentage. You are owner of that company. Are you getting it? ठीक है. तो that's why I normally say कि मतलब जॉब करने से अच्छा ओनर बनो, इन्वेस्ट करो उस कंपनी जो भी अच्छा है. ठीक है. मतलब नॉर्मली से मतलब इन्फोसिस में आपको जॉब करना है, उससे अच्छा इन्फोसिस में इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा रिटर्न देगा. ठीक है. लेट इट बी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. ठीक है. और बाद में बताऊंगा कभी तो. या सो लेट्स सी. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट फॉर कंपनी, यस, ईच एंड एवरी ब्रांच का दैट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मैटर करेगा. मतलब उसको चाहिए बिकॉज दे वांट टू नो मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांच ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक्शंस देने के लिए. ठीक है. बट एज एन इन्वेस्टर आई डू नॉट वांट दैट हर एक ब्रांच का प्रॉफिट वो सब लेके मैं क्या करेगा, उतना सब किधर पढ़ते बैठेगा. ठीक है. सो आई विल जस्ट से कि एट कंपनी लेवल, एट एंटिटी लेवल आई जस्ट वांट वन स्टेटमेंट. ठीक है. एट एंटिटी लेवल आई जस्ट वांट वन स्टेटमेंट. ठीक है. सो इट जस्ट लाइक कि यहाँ पे मतलब घाटकोपर ब्रांच का ये सबको तो ऐड कर. आई विल जस्ट से द कंपनी है एचओ, देयर ब्रांचेस इन इंडिया एज वेल एज ब्रांचेस आउटसाइड द इंडिया, ये सबका प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐड कर एंड आई विल जस्ट गिव मी वन particular statement, one statement from which I will just analyze हाँ कंपनी अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. Are you getting? ठीक है. Now that particular statement which is the combination of all will be called as what? Standalone की consolidated. What do you think? अभी जो common statement है Consolidated. that is going to be yes consolidated. Someone saying yes. Anyone else? अभी इसको सबको में जो combine करके statement बनेगा that will be what? Standalone की consolidated. स्टैंडर्ड. Yes, and someone is saying standalone. Okay, now there is a confusion. मतलब अभी आपको मैं clear करूँगा. Don't worry. ठीक है. So now this particular statement is called as a standalone. Try to understand. It's actually called as a standalone. ठीक है. Now you will get to know why it is called as standalone when I will just explain this consolidated क्या होता है. ठीक है. तो वन सेकंड, स्टैंडर्ड मतलब क्या, वो कंपनी का हेड ऑफिस. ठीक है. वो कंपनी के ब्रांचेस इन इंडिया, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में ब्रांचेस कितने हैं. ठीक है. एंड इफ इट इज एमएनसी का आउटसाइड इंडिया कितने भी ब्रांचेस है, तो हर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी हर एक ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा. ठीक है. बट टू गिव इट टू द इन्वेस्टर, मतलब इफ आई वांट टू, मतलब इन्वेस्टर वांट टू नो मतलब कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, दे विल नॉट गो एट ईच एंड एवरी ब्रांच लेवल. दे वांट जस्ट कंपनी लेवल पे एक स्टेटमेंट बता मेरे को सबका एडिशन करके. ठीक है. एंड दैट आई विल रिफर एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल जस्ट डिसाइड कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज दैट कि नाउ आई विल जस्ट ऐड दैट पर्टिकुलर कंपनी विल डू इज दैट इट विल जस्ट ऐड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल, मतलब एचओ का, ब्रांचेस इन इंडिया एज वेल एज ब्रांचेस आउटसाइड द इंडिया. ठीक है. एंड उनका मिला के एक जस्ट इट विल जस्ट मेक वन स्टेटमेंट दैट विल बी कॉल्ड द स्टैंड अलोन. समझो ये कंसोलिडेटेड नहीं है, ये स्टैंड अलोन है.
ठीक है, मतलब हर एक ब्रांच का जो भी, लेट्स सपोज घाटकोपर ब्रांच में 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, कांजूरमार्ग ने लेट्स सपोज 10 करोड़ का लॉस किया, इसने लेट्स सपोज 30 करोड़ का फायदा किया, ये सब इधर लेट्स सपोज 50 करोड़ का कुछ तो हुआ, एचओ का लेट्स सपोज कुछ तो 5 करोड़ का लॉसेस में दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब का ऐड करके आई विल बी गेटिंग वन सेटमेंट दैट इज बिकॉज द स्टैंडअलोन। समझ में आ रहा है क्या? getting that will be called as standalone, ठीक है। now what do you mean by consolidated? अभी ये चीज क्या है, consolidated चीज क्या होती है, फिर if it is called as standalone तो consolidated चीज क्या है, is just like this one। अभी consolidated क्या होता है, now it's just like कि अभी कैसे पता है अभी डीमार्ट है, डीमार्ट बड़ा कंपनी, अच्छा खासा कमा रही है, उसका टर्नओवर बहुत सही है, मार्केट कैपिटल भी मतलब समथिंग इन लाख सॉरी थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में है, ठीक है, तो अच्छी खासी कंपनी, राधा किशन दमानी उसके प्रोमोटर है, एक्चुअली मेन प्रोमोटर, एंड अच्छा खासा कंपनी, getting it, ठीक है। so now they are earning profit, they are earning profit from their business, that is it, ठीक है। बट कंपनी उसका प्रॉफिट का क्या करती है, सिर्फ मतलब खुद का कंपनी ग्रो करने में लगाती है कि और भी कुछ करेगी? यस, व्हाट डू यू थिंक? कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो वो जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा उसने वो कंपनी कमा रही है, ठीक है, या ऑब्वियसली दैट कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी का ग्रोथ, दैट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है, बट और भी कुछ कर सकते हैं क्या उसके साथ जो भी प्रॉफिट आया? सर लोन लिया रहेगा तो वो क्लियर करेगी। अच्छा, लोन वगैरह बराबर है, वो सब तो क्लियर करिए, हाँ, मतलब दे विल ट्राई टू रिड्यूस द डेट ऑन द कंपनी, ठीक है। अभी होता क्या है, नाउ द व्हाट द कंपनी डज नॉर्मली इज दैट, नाउ दिस इज व्हाट द प्योर बिजनेस इज दैट, ठीक है, नाउ व्हाट दे डू इज दैट कि नाउ दिस आर द बिग कंपनीज, दिस आर द बिग कंपनीज, डीमार्ट, लेट्स सपोज इन्फोसिस, लेट्स सपोज रिलायंस, लेट्स सपोज रेड चिली जो शाहरुख खान का है, लाइकवाइज दिस आर द बिग कंपनीज, नाउ व्हाट दे विल डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अभी उनको पता है कि मतलब हिंदुस्तान लीवर वगैरह, तो उनको पता है कि अपना यार प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब यस वी आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड वी आर हैविंग लेट्स सपोज डेट वगैरह अपना लेस है, and we are with some money, मतलब we just left with some money which is called the reserve money, और रिजर्व वगैरह क्या होता है समझेगा, मतलब ऐसा ही कंपनी के पास पैसा पड़ा है, किधर भी इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं ऐसे ही खाली में इतना ऐसा पड़ा है पैसा, ठीक है। now what this company does that is just like this one कि normally in a market there will be some startup companies रहेंगे, yes they are going to be there, startup तो रहेंगे, ठीक है। now what happens is that now these startup companies they are actually looking for, मतलब they also want to expand because they are just a startup company, they have just started the business, ठीक है, and they want to expand, are you getting it, ठीक है। now let's suppose if I talk regarding this one, तो फिर let's suppose ओला, ओला का जो अभी स्कूटर वगैरह ओला S1 वगैरह प्रो वगैरह निकाला है, ठीक है, वैसा स्टार्टअप, अदरवाइज लेट्स सपोज सिंपल वन जो बाइक निकाला है, ठीक है, लेट्स सपोज अदरवाइज वो कबीरा मोटर वाला, मतलब बिकॉज अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सही चल रहे हैं, तो अभी मतलब जो भी कंपनी से बड़ा कंपनी वो इनमें इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं, they are actually trying to invest in this one because अभी फिलहाल तो if I just talk regarding two wheeler इलेक्ट्रिकल मार्केट, तो अभी ओला फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, देन सिंपल वन करके एंड कबीरा मोटर करके जो गोवा बेस्ड कंपनी, ठीक है। सो नाउ व्हाट दिस कंपनी विल डू इज नाउ लेट्स सपोज दिस फी कह रहे हैं हाँ अभी इलेक्ट्रिक का फ्यूचर आने वाला है, ठीक है, तो फिर जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी से उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ दिस आर द स्टार्टअप कंपनी, दे विल बी लुकिंग फॉर एक्सपांडिंग, तो फिर दे एक्चुअली नीड अ मनी, ठीक है, तो दे विल बी लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर, तो फिर ये कंपनीज को अप्रोच करते हैं, और अदरवाइज दिस कंपनी विल आल्सो गेट अप्रोच टू दिस स्टार्टअप इफ दे नो कम टू नो कि अरे इनका कांसेप्ट बहुत सही है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत सही है, दे विल एक्चुअली गोइंग टू ग्रो, देन दिस बिगर कंपनी विल आल्सो अप्रोच दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप्स, ठीक है। अभी होता कैसे, नाउ दे विल इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप्स, लेट्स सपोज कबीरा मोटर है, ठीक है, एंड डीमार्ट इंटरेस्टेड है, दे विल जस्ट इन्वेस्ट इन अ कबीरा मोटर, try to understand, they will invest in a Kabira motor, ठीक है। so अभी now whenever they will invest, whenever they will just give money to the Kabira motor for the expanding, they will not say कि हाँ now मैंने तुझे इतना इतना पैसा दिए कि अब मुझे एवरी ईयर को इतना इतना तेरा सॉरी एवरी मंथ इतना इंटरेस्ट आना चाहिए और इतना तेरा EMI रहेगा वो मुझे चाहिए करके, they will not say like this one, ठीक है। if they are investing they will say I will invest in you, I will help in growing you particular your company, ठीक है, but I want equity shareholding in them, और इनमें से शेयर होल्डिंग, ठीक है, यू नीड नॉट टू रिपे मी, यू नीड नॉट टू पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ EMI एंड ऑल, ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट मींस ऑन द फॉर दैट इन्वेस्टिंग आई वांट द शेयर होल्डिंग इन योर कंपनी, सो दे विल से आई वांट टू हैव अ शेयर होल्डिंग इन योर कंपनी, गेटिंग इट, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी इसमें क्या होता है, अब इसमें ना दो चीजें आती है, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, ठीक है, अभी ये दो काइंड के कैटेगरीज आते हैं, अभी ये ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी ये क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट क्या होता है, ठीक है। अभी व्हाट दिस वन इज जस्ट कि नाउ लेट्स सपोज डीमार्ट ने कबीरा मोटर का जो भी ओनर है, नाउ ओनर के पास फिलहाल तो 100% पूरा उसका स्टेक है कंपनी का,
ठीक है, 100% इक्विटी मार्केट उसके ओनर के पास है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज ये पर्टिकुलर डीमार्ट है जिसको उसमें इन्वेस्ट करना है, बट डीमार्ट क्या बोल रहा है कि मुझे कम से कम तुझे इन्वेस्ट मतलब इतना इन्वेस्ट करेगा, मैं तो तेरा जो भी कंपनी का लेट्स 100% जितना भी प्राइस है, ठीक है, आई विल गिव यू 52%, लेट्स सपोज उतना तेरे को मैं मनी देगा, ठीक है, बट आई वांट 52% शेयर होल्डिंग ऑफ योर कंपनी, लेट्स सपोज 52% मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे एंड इन ऑन दैट बेसिस आई वांट 52% शेयर्स ऑफ योर कंपनी। नाउ डीमार्ट इज सेइंग टू कबीरा मोटर्स कि मुझे 52% का शेयर चाहिए, ठीक है। तो अभी कबीरा मोटर का जो भी ओनर रहेगा वो दिस विल डू इज दैट उसके पास 100% है, नाउ ही विल सेल दैट 52% का इक्विटी और शेयर होल्डिंग टू दी डीमार्ट, समझो, ठीक है। अभी इसके पास बचेगा सिर्फ 48% एंड डीमार्ट के पास जाएगा 52%, ठीक है। सो नाउ डीमार्ट इज एक्चुअली होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी, ठीक है, एंड दिस इज वन कबीरा इज आल्सो वन कंपनी, ठीक है, बट फॉर द डीमार्ट नाउ दिस कबीरा मोटर विल बी एज अ सब्सिडियरी कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी मतलब क्या, जस्ट लाइक दिस, नाउ व्हेनेवर से तो सब्सिडियरी वहां पे पेरेंट कंपनी रहेगी और दूसरा कंपनी रहेगी, ठीक है। सो नाउ इफ अ पेरेंट कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 50%, if parent company is holding more than 50% in any of the company, so that particular company will be called as subsidiary of parent company, try to understand once again, okay. So if any of the, now whenever I say the subsidiary company, now subsidiary means what, it's just like ki if any of the company, so that is going to be the parent or a holding company, if that particular company is holding more than 50% of share in any other company, not in the same company, in because same company का कैसा होगा, ठीक है, अदर कंपनी, बिकॉज सेम कंपनी के उसके पास तो बहुत ज्यादा शेयर्स रहेंगे, ठीक है। सो इफ इट इज होल्डिंग दैट मोर देन 50% ऑफ एनी अदर कंपनी, सो दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ सब्सिडियरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डीमार्ट, समझ में आ रहा है, सब्सिडियरी ऑफ द डीमार्ट, ठीक है। तो अभी डीमार्ट के पास अगर 52% का शेयर है कबीरा मोटर का, तो अभी कबीरा मोटर विल बी द सब्सिडियरी ऑफ डीमार्ट। सो लाइकवाइज लेट्स सपोज डीमार्ट ने और एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज बायजूस, बिकॉज नाउ डेज ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज नाउ दे विल बी सीइंग दैट करंट क्या चल रहा है उसके हिसाब से ये कंपनीज इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो दे विल बी सीइंग कि अरे हाँ अभी ऑनलाइन स्टडीज बहुत मस्त चल रहा है, तो ऑनलाइन टीचिंग में जो भी कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अभी ले सपोज डीमार्ट ने बोला कि बायजूस अभी मुझे तुझ में भी इन्वेस्ट करना है, बिकॉज बायजूस आल्सो वांट टू एक्सपांड, ठीक है। तो डीमार्ट भी से कि यस मुझे तुझ में भी इन्वेस्ट करना है, फाइन। सो लेट्स सपोज अभी बायजूस का भी उन्होंने मतलब कुछ तो परसेंट में स्टेक लिया, लेट्स सपोज उन्होंने 60% का स्टेक लिया, ठीक है, they have invested in Byju's so that they are now having the 60% of share holding of 60% of this equity holding of this particular Byju's to the DMart. So once again Byju's is also going to be the subsidiary of DMart, try to understand, ठीक है। now what do you mean by this consolidated statement, अभी समझो, try to understand, ठीक है, अभी समझो क्या होगा, it's just like this one कि now let's suppose DMart है, इसकी ये सब ब्रांचेस है, लेट्स सपोज ये सब मैंने एक्यूमुलेट करके लेट्स सपोज 20 प्लस 30 50 50 माइनस 10 40 40 माइनस 35 35 प्लस 50 85, तो लेट्स सपोज 85 करोड़ डीमार्ट का प्रॉफिट है, 85 करोड़ डीमार्ट का प्रॉफिट है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट दैट इज 85 करोड़, दिस इज गोइंग टू बी स्टैंडअलोन, सिर्फ डीमार्ट का प्रॉफिट, ओनली डीमार्ट का प्रॉफिट, means what, that is because of head office, then branches of DMart and branches which are outside the India, उनका सब प्रॉफिट मिलेगा जो भी मिला, दैट इज 85 करोड़ एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्टैंड अलोन प्रॉफिट, ये डीमार्ट का प्रॉफिट, ठीक है। बट नाउ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन सम अदर कंपनीज आल्सो ना, ठीक है। सो नाउ मतलब दैट विल मतलब एंड दे आर द शेयर होल्डर, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो इनका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो भी डीमार्ट को जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी क्या होगा कि लेट्स सपोज एक कबीरा मोटर है, उनका प्रॉफिट कुछ तो 100% 100 करोड़ है, समझो जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सपोज बायजूस भी इनका भी प्रॉफिट 100 करोड़ है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सो हाउ मच मींस आउट ऑफ दैट 100 crore, हाउ मच प्रॉफिट विल बी गिवन टू द डीमार्ट बाय दिस कबीरा मोटर, दिस इज 100 crore profit which is made by actually, 52%. ठीक है। सो नाउ इज नाउ इफ दैट डीमार्ट इज होल्डिंग 52%, तो 52 करोड़ इधर से आएगा डीमार्ट को, समझो, ठीक है। एंड लेट्स से बायजूस इज आल्सो डूइंग सम गुड बिजनेस एंड दे हैव आल्सो ओन दैट 100 crore, नाउ दिस फिगर आई एम टेकिंग जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसका कितना पैसा इधर जाएगा डीमार्ट को, 60 करोड़ 60 करोड़, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो नाउ नाउ अभी कंसोलिडेट मतलब क्या होता है कि मतलब 85 करोड़ जो मतलब डीमार्ट ने कमाया, डीमार्ट ने कमाया, ठीक है, 52 करोड़ जो उसको कबीरा मोटर से आया, ठीक है, एंड 60 करोड़ जो उसको बायजूस से आया। अब इफ आई जस्ट ऐड ऑल दिस वन, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड, समझ में आ रहा है, दैट स्टेटमेंट मींस इफ आई जस्ट कंसीडर कंपनी का स्टेटमेंट प्लस कंपनी ने जिधर जिधर भी इन्वेस्ट किए है, दैट एवरीथिंग ओन सबका पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंसोलिडेटेड वन,
Getting it? That will be called a consolidated. Okay? And the companies in which that particular parent company holding more than 50%, so that particular companies will be called as a subsidiaries. Okay? And sometimes it may happen कि they may be holding less than 50%. They may be holding less than 50%. Are you getting it? So I'm just insert a new page. ठीक है? So they will be holding. It may happen कि they will be holding less than 50%. अभी इसमें कैसे होता है? Let's see. I'll just show you the bar. Try to understand. ये सब चीजें, ये सब फंडामेंटल में इंपॉर्टेंट है एंड ये पता होना चाहिए बिकॉज इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है. ठीक है? लेट्स सपोज 100 0 to 100 का स्केल है. ठीक है? Here somewhere we are having 20, 50 and 100. ठीक है? So now it's just like this one. Now if any company is holding shares of any other company which is greater than 50% or they just lies in this particular range. ठीक है? So that particular company will be called as subsidiary. Fine, that particular means DMart is holding 52% shares of Kabira Motors. So Kabira Motors will be the subsidiary of this particular one, DMart. Okay? If they are holding 60% share of Byju's, so Byju's is going to be the subsidiary of the DMart. Okay? Now let's suppose there is any other company, some other companies, okay, in which also DMart have invested. But let's suppose for that company now the DMart ka stakeholding is 30%. ठीक है? Let's suppose DMart is holding in other IT company or let's suppose अभी Zomato, because जैसे फूड डिलीवरी भी अभी बहुत ज्यादा चल रहा है तो let's suppose DMart ने Zomato में भी इन्वेस्ट किया. ठीक है? But they have invested, मतलब they are having the 30% of stake. They are having the 30% of shares of the Zomato with a DMart. ठीक है? So now if that parent company is holding shares between 20, not between, in 20 and 50, where that 20 and 50 both are included. Are you getting it? 20 and 50 both are included. Okay? So if any other company, if any parent company is holding shares of any other company which are in between 20 to 50%, so that particular will be called as an associate company. So that particular will be called as an associate company of the DMart. Okay? So it's just like Kabira Motors and this particular Byju's will be called as a subsidiary of DMart, and this Zomato will be called as associate of DMart. Getting it? Okay? So if any company is holding between 20% to the 50%, so that particular companies will be called as associate companies of that particular company, parent company. Okay? And if it anything less than 20%, तो it's just like investment, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता नहीं है. ठीक है? हाँ, उसके पीछे भी रूल्स है, कब आएगा कभी नहीं आएगा, दैट डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग का पावर एंड ऑल, बट उसके डिटेल में फिलहाल तो नहीं जाएंगे. बट जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी वी जस्ट से कि अगर 50% के मोर है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सब्सिडरी. 20 to 50% के बीच में, मतलब इंक्लूडिव, बोथ आर इंक्लूडिव, सो दैट विल बी इंक्लूसिव, दैट विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट. एंड अगर 20% के नीचे तो वो मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते. गेटिंग इट? दैट वोंट बी कंसीडर्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ, उसमें भी रूल्स है, बट उसमें डिटेल में फिलहाल तो नहीं जाएंगे. Getting it? Okay? So now if I want to create the consolidated statement of DMart, so it will be what? DMart का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन DMart का, जिसमें इसका सभी रहेगा, HO रहेगा, प्लस उसके ब्रांचेस इन पैन ओवर इंडिया रहेंगे. ठीक है? एंड MNC भी रहेगा, जो भी मतलब मल्टीनेशनल वो भी रहेगा, MNC ब्रांचेस. ठीक है? देन प्लस ठीक है, सब्सिडरी कंपनी. ठीक है? सब्सिडरी जितने भी कंपनी है वो हर एक कंपनी का स्टेटमेंट, हर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है? प्लस एसोसिएट का प्रॉफिट एंड लॉस. Try to understand. ठीक है? So whenever the consolidated statement of any company will be what? वो कंपनी का खुद का स्टेटमेंट, उसमें उसका हेड ऑफिस, उसके ब्रांचेस, उसके इंटरनेशनल ब्रांचेस, वो सब आएंगे. ठीक है? उसके बाद उसके सब्सिडरीज कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है? उसके बाद एसोसिएट कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एंड उसके बाद और एक आता है व्हिच इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. ठीक है? तो ये सब मिला के जो स्टेटमेंट जो भी बनेगा उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट. ठीक है? सो अभी मतलब जो भी DMart का जस्ट इतना स्टेटमेंट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड अ स्टैंड अलोन, एंड ये स्टैंड अलोन विद everything, that subsidiary and associate and joint venture, that will be called as a consolidated statement. Are you getting it? Is that clear now? Standalone and consolidated होता क्या है? Is it clear? सर एक बार रिपीट करो ना एंड का. किसका? कंसोलिडेटेड वाला. अच्छा ठीक है. Once again, let's see. Just keep this particular fundas clear because ये important है. अभी once again, stand now in a financial statement will be having now what we have seen till now. Let's see. थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ फटाफट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या होता है? इंक्लूड क्या होता है? टाइप क्या होता है? दिस आर द डिफरेंट थिंग्स. ठीक है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या रहेगा? बैलेंस शीट, then profit and loss statement, then cash flow, then notes of account, then statement of
चेंज इन इक्विटी होल्डिंग, ये दिस इज नॉट दैट, मतलब इफ इट इज एप्लीकेबल तो ही, ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच विल बी देयर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. बैलेंस शीट मतलब क्या, दिस इज गोइंग टू बी एज ऑन डेट एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. बैलेंस शीट में वी आर हैविंग एसेट एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट में देयर विल बी इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस. फाइन, नाउ विल टॉक रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसमें भी दो टाइप है, दैट इज consolidated and standalone. In a financial statement we are having a two type, that is a standalone statement and consolidated statement, ठीक है. Now whenever I say the standalone means what, it's just like if I just talk regarding the DMart, standalone financial statement means what. अभी DMart, if I say the DMart, अभी उसका कुछ तो हेड ऑफिस रहेगा, उसके कुछ तो ब्रांचेस रहेंगे इंडिया में और मुंबई में और महाराष्ट्र जिधर भी है, ठीक है. और उसके लिए सपोज एमएनसी कंपनी, उसके बाहर भी ब्रांचेस है आउटसाइड द इंडिया, ठीक है. सो व्हेनेवर आई से द स्टैंडअलोन स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी मींस व्हाट, उसका एचओ का स्टेटमेंट प्लस जो भी ब्रांचेस है उनका स्टेटमेंट प्लस जो एमएनसी जो भी आउटसाइड इंडिया ब्रांचेस है उनका स्टेटमेंट, ये सबका मिला के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड द स्टैंडअलोन, ठीक है. तो स्टैंडअलोन मतलब पूरा कंपनी का ही रहेगा, वो कंपनी का मतलब जितने भी ब्रांचेस वगैरह सब वो कंपनी का ऐड कर, जस्ट ओनली फॉर द कंपनी, मतलब वो डीमार्ट जिधर भी डीमार्ट नाम का ठप्पा है वो सब आएगा, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंसोलिडेटेड, अभी कंसोलिडेटेड होता क्या है कि नाउ दिस आर द बिग कंपनीज, दे नोस कि मतलब यस मेरा तो बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है. बट दे समटाइम नो कि हाँ ये बाजू वाला जो भी बिजनेस है ना वो भी ग्रो करेगा, ठीक है. दे आर आल्सो मतलब दैट विल आल्सो ग्रो, ठीक है. सो नाउ दे डोंट वांट टू एक्चुअली स्टार्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ अभी डीमार्ट का एक्सपर्टीज उनका वो ये अपने मतलब सुपरमार्केट में, ठीक है. दे एक्चुअली डोंट वांट टू इन्वेस्ट, दे एक्चुअली डोंट वांट टू एंटर इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो फिर वो क्या करेंगे, मतलब उनके लिए फिर से उनको पूरा एस्टेब्लिश करने पड़ेगा, ठीक है. व्हाट दे विल डू इज दैट, अभी जो फिलहाल जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर इफ दे नो कि हाँ अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जमाना वाला है, ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आने वाला है, तो फिर ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. सो व्हाट दिस डीमार्ट विल डू इज दैट, नाउ लेट्स सपोज दे विल जस्ट इन्वेस्ट इन सम इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी, लेट्स सपोज कबीरा मोटर, ठीक है. अभी इन्वेस्ट मतलब कैसे, नाउ दिस आर द स्टार्टअप कंपनी, इनके पास फिलहाल तो पैसा ज्यादा नहीं है बट दे वांट टू एक्सपांड, ठीक है. तो दे विल लुक फॉर अ इन्वेस्टर, तो लेट्स सपोज दे हैव जस्ट अप्रोच दिस डीमार्ट, और डीमार्ट ने इनके पास अप्रोच किया, कैसे भी हो सकता है, ठीक है. नाउ द डीमार्ट विल से आई विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ठीक है. आई विल इन्वेस्ट बट इंस्टेड ऑफ दैट मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आई वांट अ शेयर होल्डिंग इन योर कंपनी, आई डू नॉट वांट टू लेंड यू मनी एज लोन, आई वांट टू जस्ट डू द इन्वेस्टमेंट मींस आई वांट टू हैव सम शेयर होल्डिंग ऑफ योर कंपनी, ठीक है. And now if the shareholding is greater than 50%, if the shareholding is greater than 50%, so that will be called as a subsidiary company of parent company. Parent company मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी कबीरा मोटर अभी इसमें लेसे उस डिमांड ने 52% इन्वेस्ट किया, मतलब 50% का इन्वेस्टमेंट डिमांड का, ठीक है. एंड 14% वो एक्चुअल उनका मतलब जो ओनर है उनका, ठीक है. सो नाउ दिस कबीरा मोटर विल बी कॉल्ड एज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ डिमांड, समझ में आ रहा है, सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द डिमांड, ठीक है. लाइकवाइज डिमांड हैव इन्वेस्टेड इन बायजूस आल्सो, ठीक है. तो बायजूस में लेट्स सपोज दे हैव टेकन 60% स्टेक इन अ बायजूस, so once again बायजूस विल बी आल्सो कॉल्ड द सब्सिडियरी ऑफ दिस वन, ठीक है. अभी सब्सिडियरी क्या होता है, जस्ट लाइक दिस वन, कि सब्सिडियरी मींस व्हाट, इफ एनी ऑफ द पेरेंट कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ इट्स स्टेक इन अनदर कंपनी, इफ इट इज होल्डिंग द मोर देन 50%, तो वो पर्टिकुलर जो भी कंपनी में होल्ड करे उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द पेरेंट कंपनी, ठीक है. एंड इफ द पेरेंट कंपनी इज होल्डिंग इन बिटवीन 20 to 50%, so that another company in which they are holding the shares, so that will be called as an associate company, ठीक है. और अगर उसके नीचे रहेगा तो फिर वो कंसीडर नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है. एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड मतलब क्या, डीमार्ट का खुद का तो स्टेटमेंट आएगा जिसमें उसका एचओ, ब्रांचेस इन इंडिया एंड एमएन अगर आउटसाइड इंडिया वो तो कंसीडर होंगे, ठीक है. बट विद दैट सब्सिडियरी कंपनी एज वेल एज एसोसिएट कंपनी उन सब का भी आएगा, आर यू गेटिंग इट, उन सब का भी आएगा, ठीक है. सो इट जस्ट लाइक मतलब अभी कबीरा मोटर का भी रहेगा, मतलब कबीरा मोटर का उसके जो भी ब्रांचेस रहेंगे उनका स्टेटमेंट भी रहेगा, ठीक है. तो दैट पर्टिकुलर इतना स्टेटमेंट मतलब दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब कबीरा मोटर का हेड ऑफिस, उसके ब्रांचेस इन इंडिया एंड ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है. सो दैट विल बी कॉल्ड द स्टैंडअलोन ऑफ कबीरा मोटर, ठीक है. नाउ फॉर दैट बायजूस आल्सो दे विल आल्सो हैव द स्टैंडअलोन स्टेटमेंट, मतलब उनका हेड ऑफिस का, उनका ब्रांचेस इन इंडिया का, एंड इफ दे आर हैविंग ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया तो उसका भी स्टेटमेंट, ठीक है. तो दैट विल बी हैविंग द स्टैंडअलोन, getting, so each and every company is going to have the standalone, ठीक है. but for the DMart if I want to consider मतलब DMart का standalone plus दिस कबीरा मोटर का एंड प्लस दिस पर्टिकुलर बायजूस का, अब ये इन सबका ऐड करके जो भी स्टेटमेंट बनेगा डीमार्ट के लिए दैट इज गोइंग टू बी द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, बिकॉज डीमार्ट में डीमार्ट ने उनमें भी इन्वेस्ट किए तो उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस कुछ तो होगा, दैट विल आल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल्स ऑफ डीमार्ट,
ठीक है. सो कंसोलिडेट मतलब क्या, कंपनी ने जिधर भी इन्वेस्ट किया उन सबका प्रॉफिट एंड लॉस सब मिला के जो भी आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड. ठीक है. इफ आई जस्ट कंसीडर ओनली ऑफ डीमार्ट so that will be standalone, and if I just consider DMart ने जिधर भी इन्वेस्ट किया वो भी, so that will be consolidated. Is that clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है. So that is what consolidated and standalone financial statement, and I hope you have understood this associated क्या होता है and subsidiary क्या होता है. Fine. And now I just coin this particular term joint venture. अभी joint venture क्या होता है कि joint venture is that means कैसे बोलूं, joint venture मतलब now some companies are doing some project for in combined for some time period, not for that entire life. ठीक है. मतलब अभी if I just tell you क्या बोलूं, अच्छा let's suppose I want to build some flyover or I just want to lay down some let's suppose track railway track वगैरह कुछ तो मुझे डालना है. ठीक है. now let's suppose L&T कंपनी है. ठीक है. एंड अपना इंडियन रेलवे भी है, IRCTC वगैरह कुछ तो है. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है. मुझे ले सपोज न्यू रेलवे ट्रैक डालना है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, न्यू ट्रैक चाहिए मुझे जो फास्टेस्ट ट्रैक रहेगा ऐसा कुछ तो चाहिए. ठीक है. दिस इज अ प्रोजेक्ट. Fine. Now let's suppose what L&T is saying he means what are the machineries and all required that I have, but right now I do not have money, मतलब I do not have much money with me. ठीक है. IRCTC क्या बोलेगा कि let's suppose ना I do have a money but I do not have a machineries to build this particular track. So अभी L&T क्या बोलेगा, मतलब तू अकेला भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, मैं अकेला भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता. ठीक है. So let's just join hand and just complete this project. ठीक है. So now these two companies will come together for this particular project and they will just complete it. ठीक है. So they'll be together till this project completed and जैसे complete हो जाएगा फिर से वो separate हो जाएंगे. ठीक है. So this particular मतलब ऐसा जो भी रहता है उसको बोलते हैं joint venture. So join करके जो मतलब काम किया रहेगा, प्रोजेक्ट किया रहेगा. ठीक है. That is called joint venture and वो भी profit and loss statement में आता है. ठीक है. ठीक है. So then मतलब L&T is not going to invest in IRCTC and IRCTC is also not going to invest in L&T. उसका कुछ shareholding pattern वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. हाँ, but they are just coming together to just complete some project. So that will be called as a joint venture. और उससे जो भी फायदा होगा that also get included in the consolidated statement. ठीक है. But that will be for just for the time period. ठीक है. उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद L&T separate and IRCTC separate. ठीक है. So that is called as a joint venture. I hope you have understood. ठीक है. ठीक है. So this is all regarding the balance sheet and financial statement and all. ठीक है. And in the next lecture or tomorrow's lecture we will see that actual वाला balance sheet. मतलब किसी तो कंपनी का annual report खोलेंगे उसमें we will be getting this particular balance sheets. ठीक है. Fine. So any doubt so far? आज के लिए इतना काफी है. I will stop it. I will stop the recording. Yeah.